السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے نیوز بلیٹن حیدرآباد ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد فخر الدین۔ سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ حیدرآباد کو بہت جلد فری وائی فائی سٹی میں کیا جائے گا تبدیل۔ ایئرٹیل کمپنی سے تلنگانہ حکومت نے کیے معاہدے، ریاستی وزیر کے ٹی آر کا بیان۔ کنٹریکٹ ملازمین نے نظام آباد کلکٹریٹ کے روبرو کیا احتجاج۔ ملازمتوں کو مستقل کرنے کا چیف منسٹر کے سی آر سے کیا مطالبہ۔ مسائل کو نظر انداز کرنے والے کے سی آر پر کانگریس اور بی جے پی قائدین برہم، عوام سے کیے وعدوں کو جلد سے جلد پورا کرنے پر دیا زور۔ اور مہاراشٹر کے ناسک میں راہل گاندھی نے کیا انتخابی جلسے عام سے خطاب، بی جے پی کو بنایا شدید تنقیدوں کا نشانہ، سرحدی علاقوں پر توجہ دینے کا دیا مشورہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ بیگم پیٹ میں واقع ایک ہوٹل میں تلنگانہ کے آئی ٹی منسٹر کے ٹی آر نے ایئرٹیل کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کیا۔ اس دوران ایئرٹیل کے ساتھ تلنگانہ حکومت نے ایک معاہدہ کیا جس کے تحت شہر حیدرآباد کی عوام کو فری وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کا کے ٹی آر نے اعلان کیا۔ آج حیدرآباد کے علاقے ہائی ٹیک سٹی تک کوتا گوڑم علاقے تک فری وائی فائی کا کے ٹی آر نے افتتاح کیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت ریاست بھر کو انٹرنیٹ سے مربوط کرنے کی کوشش میں ہے، جس کے پہلے مرحلے کے کاموں کا آج آغاز ہو گیا ہے۔ We'd either use radio frequency or we'd either go with the existing service providers and ensure that the entire city is covered. He said, "Have you heard of Li-Fi?" I was surprised. I was taken aback. Then I looked up. Actually, I tried to understand a bit about it from him. And when I came back home, I actually looked it up. Now, while we are talking about 3Gs and 4Gs, the world has moved ahead. The world is talking about 5th generation, the 5G services, where through LED light and through the emissions of that LED, through the emissions of LED, you can actually transmit and create a network. That is the concept of 5G. And the world has already moved on. The world is already considering it very actively. So, what we are doing today is definitely something that excites me, definitely something that is in the right direction. But the world is actually moving ahead while we are still, waiting for 4G services to be launched in Hyderabad and India. آلاگڈہ اسمبلی حلقے سے وائی ایس آر سی پی نے شوبھا ناگی ریڈی کی بیٹی بھوما اکھیلا پریا کے نام کو خطیت دے دی ہے۔ بھوما اکھیلا پریا اس حلقے سے وائی ایس آر سی پی کی ٹکٹ پر انتخابی مقابلہ کرے گی۔ واضح رہے کہ اسمبلی انتخابات کے موقع پر آلاگڈہ ایم ایل اے شوبھا ناگی ریڈی کی کار حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے یہ حلقہ خالی تھا۔ آج بھوما ناگی ریڈی نے اپنی بیٹی بھوما اکھیلا پریا کے ہمراہ پارٹی چیف جگن موہن ریڈی سے ملاقات کی۔ اس دوران جگن موہن ریڈی نے بھوما اکھیلا پریا کو آلاگڈہ حلقے کا امیدوار منتخب کیا۔ دوسری جانب تیلگو دیشم پارٹی نے اپنی پرانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آلاگڈہ اسمبلی حلقے سے مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف محکموں کے ملازمین نے نظام آباد کلکٹریٹ کے روبرو بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ سی آئی ٹی یو کی قیادت میں منعقدہ اس دھرنے میں کنٹریکٹ ملازمین نے کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اپنے مسائل سے کلکٹر کو واقف کروایا۔ ملازمین کے احتجاج کے سبب کچھ دیر کے لیے ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ احتجاجی ملازمین کو مستقل کرنے کا گزشتہ کئی دنوں سے مطالبہ شدت سے جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہونے پر ملازمین نے کلکٹریٹ کے روبرو بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ احتجاجی ملازمین نے کہا کہ اگر ان کے مسائل کو اسی طرح نظر انداز کیا گیا تو مستقبل میں وہ احتجاج میں مزید شدت پیدا کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ضلع ورنگل کے جنگاؤں میں کسانوں نے ان کی فصل پر واجبی قیمت ادا نہ کرنے پر مارکیٹ یارڈ میں بڑے پیمانے پر دھرنا دیا۔ احتجاجی کسانوں نے بتایا کہ ایک جانب انہیں برقی کٹوتی سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، باوجود اس کے فصل تیار ہونے پر انہیں خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ رات دن ایک کرتے ہوئے خون کے آنسو بہا کر فصل تیار کرنے کے بعد بھی انہیں کوڑیوں کے دام خریدا جا رہا ہے۔ برہم کسانوں نے ان کی فصل پر واجبی قیمت ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔
तेलंगाना भवन में यूथ जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में पेद्दापल्ली एमपी सुमन ने शिरकत की। जलश्याम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कई मुलाजिमतें मखलूआ हैं जिन्हें बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि अब अलहदा रियासत का क़याम अमल में आया है। अलहदा रियासत में नौजवानों को रोजगार के कई मौके पैदा होने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत तमाम मखलूआ जायदादों को बहुत जल्द पूरा करने वाली है। कांग्रेस पार्टी एमएलए जीवन रेड्डी ने सीएलपी ऑफिस में मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आम सर्वे के बाद 10 लाख वाइट राशन कार्ड को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा 3 कमरों पर मुश्तमिल फैमिली को वाइट राशन कार्ड बर्खास्त करने केसीआर के फैसले पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने इंतखाबात से कबल किसानों से और समाज के मुख्तलिफ तबकों से कई वादे किए थे जिनको अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने अवाम से किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। उसमें अब तक की 10% काटी, मतलब 10 लाख रेशन कार्ड सब तक की बोगस बोल के निकाल दिए। वो बोगस कहां तक है वो अलग बात है। अब तक की 10 लाख रेशन कार्ड कम कर दिए। अब बचे तो 80 लाख में भी और एक 20-30 लाख कम करना बोल के किसी वजह से 60 लाख से ज्यादा रेशन कार्ड नहीं रखना। अब वही अंदाज से अब ये क्या है बोले तो मरकज से हुकूमत है ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो अमल कर रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी के एक्ट के मुताबिक हर एक को 3 रुपए में 1 किलो चावल दिया जाएगा। मतलब जो मरकज हुकूमत फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक रियासत को जितने चावल देते वही चावल से चलाना। अब रेशन कार्ड कम करने के क्या वही रास्ते में अब ये हुकूमत पड़ गए। उन्हें बोलते अब 3 कमरे ऐसे वालों को रेशन कार्ड निकाल दो। उन्हें खुद बोले केसीआर खुद दे। आप घर बोले तो ये कमरे से नहीं चलता। मियाँ बीबी सोए तो बच्चे कहां सोते, या कोई रिश्तेदार आए तो कहां सोते। मियाँ बीबी को अलग कमरे रहना, बच्चों को अलग कमरे रहना, और कोई रिश्तेदार आए तो अलग कमरा रहना। मैं 3 कमरों की घर बना के देता हूं बोल के बोले। अब 3 कमरे रहे तो रेशन कार्ड निकाल देते बोल के बोले। अब आउटसोर्सिंग लेबर कॉन्ट्रैक्ट। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत हर मुहाज में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके अलावा बेशुमार अवामी मसाइल हैं। इन मसाइल पर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपने वादे को फरामोश कर चुकी है। इंतखाबात से कबल अवाम से कई वादे किए थे। उन्होंने अवामी मसाइल पर तवज्जो देने का चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुतालबा किया। वो ज्यादा मदद करने के वास्ते कोशिश कर रहे, खाली पार्टी के वास्ते काम करते, लेकिन ये लोग पब्लिक के वास्ते तो काम नहीं कर रहे। टीआरएस वाले डिसॉल्व कर दिए, लेकिन ये 15 दिन में कैसे देते, एप्लीकेशन कैसे लेते, वो कौन देने वाला है? फिर ये लोगन से हो सकते क्या? ये पूरा ये तुगलक का राज चल रहा है। 3 दिन छुट्टी रहता, 15 तारीख तक देव बोल के कोई अगर हमेशा बोलते, जो तेलुगु में मैं बोलता हूँ हमेशा मेड मीद तलकाय उन्नोडु बोले तो सिर जो गर्दन के ऊपर रहे सो आदमी जो ही ऐसा बात नहीं करते बोल के 15 तारीख तक कैसे ये लोग पूरे के पूरे व्हाइट रेशन कार्ड को एप्लीकेशन दे देना, ये फीस रिएम्बर्समेंट को एप्लीकेशन देना, ये जो ओल्ड एज पेंशन्स के वास्ते और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड पेंशन्स के वास्ते सब एप्लीकेशन 15 तारीख तक देना। क्या है ये? हफ्ते में होने का है ये? कुछ सोच समझ के करते हैं गवर्नमेंट। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा।
मेरी सरकार का हर दिन, हर पल लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए। हैदराबाद डेयरी में आपका इस्तकबाल है। साबिक रियासती वजीर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को मेदक कांग्रेस पार्टी का सदर मुंतखब किया गया है। इस ज़िमन में हैदराबाद में वाक़ गांधी भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई। तेलंगाना पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मయ్య की क़यादत में मुनक़िदा इस तकरीब के दौरान सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को डीसीसी की जिम्मेदारी दी गई। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को मेदक जिले कांग्रेस पार्टी का सदर मुंतखब करने पर साबिक रियासती वजीर गीता रेड्डी के अलावा साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश दामोदर राज नरसिम्हा व दीगर ने खुशी का इजहार किया। डीसीसी सदर मुंतखब होने के बाद सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि पार्टी ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी है इसको वो बखूबी निभाएंगे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महिंदर रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के इलाके परगी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने परगी में वाक़े गुरुकुल स्कूल में इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलों का इफ्तिताह किया। परगी में खेलों के मुकाबले मुनक़िद करने पर तुलबा ने खुशी का इजहार किया। बाद अज़ां तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने रियासती वजीर और मुकामी एमएलए ने कहा कि आज के दौर में तालीम के साथ साथ खेल कूद को भी जरूरी है। मुख्तलिफ किस्म के खेल मुनक़िद करने से तुलबा सेहतमंद और चाको चौबंद रहते हैं। आज के दौर में तालीम के साथ साथ खेलों के मुकाबले भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। कायदीन ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत तालीम के साथ साथ खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए संजीदा है। క్రీడలంతా కూడా ఈ రూరల్ ప్రాంతాల్లో పెట్టడం, ముఖ్యంగా పరిగిలో ఇంత మరి ఈ స్కూల్లో పెట్టడం అన్నది చాలా సంతోషం. ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పినారు ఇక్కడ కిచెన్ తో పాటు కొన్ని आम आदमी पार्टी के कायदीन व कारकुनों ने तेलंगाना भर में शराब को बंद करने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद एक्साइज कमिश्नर को एक याददाश्त पेश की। आम आदमी पार्टी कायदीन का कहना है कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना भर में खवातीन महफूज नहीं हैं। रोजाना कई खवातीन की असमत रेजी की खबरें मंजर आम पर आ जाती हैं। उन्होंने बताया कि तमाम बुराइयों की जड़ नशा है। साफ सुथरे समाज की तामीर के लिए शराब पर पाबंदी लगाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत इनके मसाइल पर कोई पहल नहीं करती है तो मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी धरने मुनक़िद करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। लिस्ट देंगे किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वो पूरी लिस्ट देंगे हम लोग। सिर्फ शराब से या सेंधी से ही रेवेन्यू नहीं आती, इसको रोकते हुए भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर रेवेन्यू गेन कर रहे हैं वो लोग। हम लोग इस पर धरना देंगे, एजिटेशन शुरू कर देंगे पूरे स्टेट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मंडल, हर गांव पे जो है सो हम लोग इसका जो है सो एजिटेशन शुरू करेंगे, इसका धरना शुरू करेंगे हम लोग जी, प्रोटेस्ट करेंगे। इलेक्शन के पहले केसीआर साहब ने कहा था कि तेलंगाना को सिंगापुर बनाऊंगा, और उन्होंने सिंगापुर का भी नौयबा किया, जाकर आए थे उन्होंने, और वहाँ पर शायद उन्होंने यही देखा होगा कि हर जगह कल्लू कंपाउंड ही खुले हुए होंगे। उसके लिए यहाँ तेलंगाना में भी वो कल्लू कंपाउंड खोल रहे हैं। मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ, अगर आप कल्लू कंपाउंड खोलेंगे तो अगली बार आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे और आपके 5 साल भी आप नहीं गुजार पाएंगे। शहर में खुली 103 टॉडी शॉप्स को बंद करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज यहां आए हैं हैदराबाद में प्रोहिबिशन एक्सरसाइज कमिश्नर के पास अपना रिप्रेजेंटेशन देने। वे चाहते हैं कि सारी टॉडी शॉप्स और वाइन शॉप्स जो हैं हैदराबाद की बंद हो जाए। वे चाहते हैं एक साफ सुथरा और स्वच्छ हैदराबाद। हुकूमत मध्य प्रदेश ने हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में एक एग्जीबिशन मुनक़िद किया। चंदूरी सिल्क एग्जीबिशन के जिम्मेदारों ने बताया कि मध्य प्रदेश की दस्तकारी को मुल्क भर में फरोग देने के मकसद से हैदराबाद में एक एग्जीबिशन मुनक़िद किया गया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश की सिल्क साड़ियाँ हिंदुस्तान भर में मशहूर हैं। इस सनत को मजीद फरोग देने के मकसद से हुकूमत ने भी भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया है। ये एग्जीबिशन हैंडलूम चंदेरी द्वारा उत्पादित की गई है, जिसका मेन पर्पस है डायरेक्ट कस्टमर के पास प्योर चंदेरी पहुंचना, जो कि ओरिजिनल चंदेरी ये कल्याण आज की डेट में वर्ल्ड फेमस संस्था है कल्याण बनकर हैंडलूम चंदेरी, जिसका मैं खुद प्रोपाइटर हूं शोएब खान, और हमारा यही मेन पर्पस है कि तेलंगाना हुकूमत ने आम सर्वे के बाद रियासत की आवाम को राशन कार्ड फराहम करने का ऐलान किया है, जिसे फूड सिक्योरिटी का नाम दिया गया है। हैदराबाद कलेक्टर मुकेश मीना ने मीडिया से बात करते हुए शहर हैदराबाद की आवाम से कहा कि वो एक हफ्ते के दौरान यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख तक राशन कार्ड के लिए फॉर्म दाखिल करें, जिसके लिए आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लाजमी है।
انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے علاقے کے راشن شاپ میں اپنی فیملی کی تفصیلات کے ساتھ آدھار کارڈ کا زیراکس لگا کر داخل کریں۔ انکوائری کے 1 ماہ بعد فوڈ سیکیورٹی کارڈ فراہم کیا جائے گا جو راشن کارڈ کے مماثل ہے۔ Telangana government has taken a decision to issue new food security cards and new pension sanctions for all those persons who are existing card holders as well as existing pension holders. For that, we are taking applications from all the people who are presently having cards and pensions as well as new applicants also from 13th to 20th of this month. For the food security card or the ration card holders, the applications will be submitted in the concerned fair price shops, and for remaining, that means caste, nativity, income certificate and then pension applicants, those applications will be submitted in the concerned MRO offices. So after getting these applications, we will give them an acknowledgement, and then after 20th, as per the instructions or the guidelines given by government regarding this inquiry and eligibility, we will give new food security cards and new pension letters and these new Telangana go. اور اب آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد کو بہت جلد فری وائی فائی سٹی میں کیا جائے گا تبدیل، ایئرٹیل کمپنی سے تلنگانہ حکومت نے کیے معاہدے، ریاستی وزیر KTR کا بیان۔ کنٹریکٹ ملازمین نے نظام آباد کلکٹریٹ کے روبرو کیا احتجاج، ملازمتوں کو مستقل کرنے کا چیف منسٹر KCR سے کیا مطالبہ۔ مسائل کو نظر انداز کرنے والے چیف منسٹر KCR پر کانگریس اور BJP قائدین برہم، عوام سے کیے وعدوں کو جلد سے جلد پورا کرنے پر دیا زور۔ اور مہاراشٹر کے ناسک میں راہل گاندھی نے کیا انتخابی جلسے عام سے خطاب، BJP کو بنایا شدید تنقیدوں کا نشانہ، سرحدی علاقوں پر توجہ دینے کا مودی کو دیا مشورہ۔ ناظرین، حیدرآباد ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔